میرے چرچ کی طرف سے آج آپ سب کو عید پینتیکوست مبارک ہو. آپ سب کو مبارک ہو. زوردار تالیاں. آج بڑا اہم دن ہے اور اس دن کے تعلق سے ہم سیکھیں گے بھی. آئے جن لوگوں کے پاس بائبل مقدس ہے وہ میرے ساتھ حوالہ نکالیں گے. اعمال کی کتاب جس کو رسولوں کے اعمال بھی کہتے ہیں، اس کا 2 باب اور اس کی پہلی آیت سے لے کر 4 آیت تک ہم خدا کے کلام کا مطالعہ کریں گے. حوالہ دوبارہ ریپیٹ کی دیتا ہوں. رسولوں کے اعمال اس کا 2 باب اور اس کی پہلی 4 آیات کا آج ہم مطالعہ کریں گے. اگر آپ حوالہ نکال لیں تو آپ آمین کہہ سکتے ہیں. بائبل مقدس میں کچھ مرقوم ہے، جب عید پینتیکوست کا دن آیا تو وہ سب ایک جگہ جمع تھے کہ یکایک آسمان سے ایسی آواز آئی جیسے زور کی آندھی کا سناٹا ہوتا ہے، اور اس سے سارا گھر جہاں وہ بیٹھے تھے گونج گیا، اور انہیں آگ کے شعلہ کسی پھٹتی ہوئی زبانیں دکھائی دی اور ان میں سے ہر ایک پر آ ٹھہری، اور وہ سب روح القدس سے بھر گئے اور غیر زبانیں بولنے لگے جس طرح روح نے انہیں بولنے کی طاقت بخشی. پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو. آپ سب، میں نے آپ کو اپنی گفتگو کی آواز میں ہی بتایا کہ آج عید پینتیکوست کا دن ہے. کیا ہے جی؟ عید پینتیکوست والا دن کیا ہوا تھا؟ کیا ہوا تھا اس دن؟ 120 لوگوں کی جماعت میں کیا ہوا تھا جی؟ روح القدس کا کیا ہوا تھا؟ نزول ہوا تھا. یعنی روح القدس کیا تھا؟ نازل ہوا تھا. عید پینتیکوست کا جو دن ہے وہ 2 بڑی جو قومیں ہیں وہ سیلیبریٹ کرتی ہیں. ایک یہودی جو ہے اور سیکنڈلی جو کرسچن کمیونٹی ہے، یہ دونوں جو ہے اس دن کو بڑا سیلیبریٹ کرتے ہیں. اور آج پوری دنیا میں اس دن کو بڑے جوش و خروش کے ساتھ سیلیبریٹ کیا جا رہا ہے، کیونکہ اس دن کیا ہے، اس وعدے کی تکمیل ہوئی ہے جو یسوع مسیح نے عید سعود فرماتے ہوئے اپنے شاگردوں سے، اپنے حواریوں سے فرمایا تھا کہ میں تجھے کیا ہے، میں تجھے اکیلا اور یتیم نہ چھوڑوں گا، بلکہ اپنی ہی مانند ایک دوسرا مددگار تمہارے لیے جو اب تک کیا ہے تمہارے ساتھ رہے گا. جو اب تک کیا ہے تمہارے ساتھ رہے گا. اب کیا ہے، جو مددگار کی تلاش تھی اس کا جو نزول ہے، اس کی جو آمد ہے، عید پینتیکوست والے دن ہوئی تھی آج سے 2020 سال پہلے. آج سے، لیکن اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ روح کو صرف تو آج سے 2020 سال پہلے ہی نازل ہوا تھا. اس کا وجود تو تخلیق کائنات سے پہلے بھی تھا. اس کا وجود تو تخلیق کائنات سے پہلے بھی تھا. اولڈ ٹیسٹمنٹ میں جب ہم کی بکس کی سٹڈی کرتے ہیں تو روح القدس تب بھی نبیوں پر، بادشاہوں پر اور اپنے جو بہت سارے خدام تھے ان پر نازل ہوتا تھا. لیکن کیا تھا، نازل ہوتا تھا لیکن مکمل ٹھہرتا نہیں تھا. لیکن اب جب نئے اہدامہ کی نیو ٹیسٹمنٹ کی بات کر رہے ہیں تو اب روح القدس کیا ہے، وہ صرف آ کر چلا نہیں جاتا ہے بلکہ آ کر ہمارے ساتھ ہی رہتا ہے. ہاللیلویہ، ہاللیلویہ. اس سے پہلے کہ ہم روح القدس کے تعلق سے باتیں سیکھیں، میں جو فیسٹ آف دا پینتیکوست ہے، جو جشن عید پینتیکوست ہے، اس کے تعلق سے اہم باتیں اور چند باتیں آپ کی نظر کرنا چاہوں گا کہ پینتیکوست کا مطلب 50واں دن ہے. پینتیکوست کا مطلب کیا ہے؟
50वां दिन, और ये एक यूनानी जुबान का लफ्ज है। यहूदी हर साल ईद फसा के 50 दिन बाद ईद पेंतिकोस्त को सेलिब्रेट करते थे। यहूदी क्या थे? ईद फसा के 50 दिन बाद, यानी ईद फसा के बाद 7 हफ्तों के बाद क्या है, जो 50वां दिन होता था, उस दिन को वो सेलिब्रेट करते थे। और वो दिन कौन सा होता था? पेंतिकोस्त का दिन। जब यहूदी अकीदे के मुताबिक पेंतिकोस्त वो दिन था जब मूसा नबी को शरीयत दी गई थी कोहे सीना पर। यहूदी अकीदे के मुताबिक पेंतिकोस्त का वो दिन था जब मूसा नबी को शरीयत दी गई थी कोहे सीना के पहाड़ पर। उसको 10 कमांड्स दिए गए थे, 10 हुक्म दिए गए थे, और लोहे की तख्तियों पर क्या था, उनको लिख दिया गया था। अगर हम इसको देखना चाहें तो इस तरह उसका 16वां बाब उसकी 16वीं आयत में यूं मरकूम है। बनी इस्राएली कौम साल में 7 ईदें मनाती थी। बनी इस्राएल कौम क्या है जी? जरा मेरे साथ लेंगे तो आपको बरकत भी मिलेगी और आपको समझ भी आती रहेगी। मैं बड़े ठहराव के साथ आपको बात बताना चाहूंगा कि ईद पेंतिकोस्त हकीकत है क्या, और हम इसको सेलिब्रेट क्यों करते हैं, और यहूदी क्यों इसको सेलिब्रेट किया करते थे। आज यहाँ पर जमा होना कोई आम नहीं है, ये आम कोई सर्वस नहीं है, बल्कि आज बड़ा खास दिन है। इसलिए कि इस दिन को हम इसलिए मसीह सेलिब्रेट करते हैं कि रूहुल कुद्स का नज़ूर हुआ था, लेकिन उसके साथ साथ आज के दिन पेंतिकोस्त का दिन भी मनाया जाता था। यहूदी पेंतिकोस्त को भी मनाया करते थे। जिस तरह हमने अमाल की किताब उसका 2वां बाब उसकी जब पहली आयत का मुताला किया, जब ईद पेंतिकोस्त का दिन आया, जब ईद पेंतिकोस्त का दिन आया तो वो सब एक जगह जमा थे। जब ईद पेंतिकोस्त का दिन आया तो वो सब एक जगह पर जमा थे। कौन जमा थे? शागिर्द जमा थे, और उसके साथ बहुत सारी खवातीन भी जमा थी, और उनमें मुकद्दसा मां मरियम भी शामिल थी। और ये कुल मेंबरान की तादाद जो थी 120 थी। 120 लोगों की तादाद पर मुश्तमिल ये एक हजूम था, और इन पर क्या होता है कि रूहुल कुद्स का नज़ूर होता है। अब बनी इस्राएल कौम साथ में 7 ईदें मनाते थे, और जिनमें एक ईद उनकी ईद फसा भी थी, और ईद फसा के 7 हफ्तों के बाद 50वें दिन ईद पेंतिकोस्त मनाते थे। कौन मनाते थे जी? यहूदी मनाते थे। कौन मनाते थे? यहूदी। कौन मनाते थे जी? यहूदी मनाते थे, जिसको वो हफ्तों की ईद भी कहते थे, पहले फलों की ईद भी कहते थे, फसल कटाई की ईद भी कहते थे। जब ईद पेंतिकोस्त के 3-4 नाम हैं, जिस तरह मैंने पहले बताया कि हफ्तों की ईद भी इसको कहते हैं, पहले फलों की ईद भी इसको कहते हैं, फसल की कटाई की ईद भी इसको कहते हैं। किसको कहते हैं जी? जरा जोर से बोले, किसको कहते हैं? और यहूदी इस ईद में अपने अनाज का पहला हिस्सा खुदा के हुजूर लेके आते थे शुक्रगुजारी के तौर पर। और यहूदी क्या करते थे? अपने अनाज का पहला हिस्सा क्या करते थे? खुदा के हुजूर लेकर आते थे। किस लिए? कि वो शुक्रगुजारी करें कि खुदा ने हमें ये बरकत दी है। बड़ी अहम बातें हैं जो मैं आपके होश गुजार कर रहा हूं ताकि आप इससे बरकत हासिल कर सकें। अब बिब्लिकली लैंग्वेज के मुताबिक पेंतिकोस्त टाइप थी एंटी टाइप की। क्रिश्चियन थियोलॉजी के मुताबिक, मसीही इल्मे इलाहियात के मुताबिक, बिब्लिकली लैंग्वेज के मुताबिक पेंतिकोस्त टाइप थी एंटी टाइप थी। अब आप ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये टाइप क्या है। ये टाइप क्या है? टाइप फ्यूचर में आने वाली किसी हकीकत का नाम है। टाइप क्या है जी? मुस्तकबिल में आने वाली किसी हकीकत का नाम है। वो इल्म जो टाइप्स के इल्म को ज़ाहिर करता है उसे टाइपोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? टाइपोलॉजी कहते हैं। वो इल्म जो टाइप्स के इल्म को उजागर करता है, एक्सपोज करता है, उस इल्म को टाइपोलॉजी कहते हैं। मिसाल के तौर पर ओल्ड टेस्टामेंट में तस्वीरें नजर आती थी। ओल्ड टेस्टामेंट में क्या आती है? तस्वीरें नजर आती है। और न्यू टेस्टामेंट में उन तस्वीरों की हकीकत नजर आती है। न्यू टेस्टामेंट में क्या होती है? उन तस्वीरों की हकीकत नजर आती है। जिस तरह पेंतिकोस्त हफ्तों की ईद थी, फसल काटने की ईद थी, पहले फलों की ईद थी, इसी तरह यहूदियों के लिए दर हकीकत वो अक्सा, वो क्या था? अक्सा रूहुल कुद्स का जो
जो नए अहद नामे में रूनुमा होता है। अब पेंटिकोस्ट क्या है? वो पुराने अहद नामे में लोग मना रहे हैं। अब क्या है कि वो एक शैडो था, एक साया था, एक टाइप थी, एंटी टाइप की, वो एक अक्स था किसका? रूलकुस का। और वो क्या है कि आज से 2020 साल पहले क्या होता है, 120 लोगों की जमात में वो जो टाइप थी एंटी टाइप की वो पूरी होती है और रूलकुस का नज़ूल होता है। क्या होता है जी? रूलकुस का नज़ूल होता है। ये तो थी पेंटिकोस्ट के ताल्लुक से अहम बातें। अब हम रूलकुस के ताल्लुक से चंद अहम बातें सीखेंगे कि दर हकीकत रूलकुस है क्या और उसकी खुसूसियात क्या है। रूलकुस क्या है और उसकी खुसूसियात क्या है। मैं आपकी बात बताता चलूं कि ईदे फसा जो थी वो मिस्र से गुलामी के बाद यहूदी कौम ने आकर क्या है, वादे की सरजमीन पर उसको सेलिब्रेट किया। गुलामी से आजादी की तरफ गामजन होने का नाम क्या है? ईदे फसा। फसा समझ आ रही? और फसा वाले दिन वो क्या करते थे कि बर्रा लेते थे और उसको कुर्बान करते थे और खुशी मनाते थे कि खुदा ने हमें मिस्र की गुलामी से छुटकारा दिया है, आजादी दी है, रिहाई दी है, मखलसी दी है। और यीशु मसीह हमारा क्या है? वो फसा का बर्रा है। यीशु मसीह क्या है? वो हमारा फसा का बर्रा है। खुदावंद यीशु मसीह के मुर्दों में से जी उठने के 50वें दिन, खुदावंद यीशु मसीह के मुर्दों में से जी उठने के बाद 50वें दिन क्या होता है कि ये ईद पेंटिकोस्ट क्या है? रसूल सेलिब्रेट करते हैं। जब खुदावंद यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे तो उसके बाद जमीन पर क्या होता है? 40 दिन तक वो नजर आते रहते हैं। क्या आते रहते हैं? और लोगों को तालीम देते हैं, बातें सिखाते हैं, क्या करते हैं? अरशाद आज़म भी वो पेश करते हैं। उसके बाद क्या होता है? उनका सऊद हो जाता है। क्या हो जाता है? सऊद का मतलब है कि आसमान पर उठा लिए जाते हैं। लेकिन वो वहां पर कहते हैं कि जब तक तुम्हें कुव्वत का लिबास ना मिले तुम यहीं पर, यानी कि अमाल की किताब उसका पहला बाब उसकी 8वीं आयत का जब मुतालिया करते हैं तो वहां पर लिखा है, लेकिन जब रूह कुद्स तुम पर नाजिल होगा तो तुम क्या करोगे? कुव्वत पाओगे और यरूशलेम और तमाम यहूदिया और सामरिया में बल्कि जमीन की इंतहा तक मेरे गवाह होगे। अब क्या है? रूह कुद्स क्या है? वो ईद फसा के 7 हफ्तों के बाद 50वें दिन क्या है? वो पेंटिकोस्ट का दिन बनाया जाता है। अब रूह कुद्स के ताल्लुक से हम अहम चंद बातें सीखना चाहेंगे कि रूह कुद्स एक शख्स है और वो शख्सी खुसूसियात रखता है। रूह कुद्स क्या है जी? जरा जोर से बोले, रूह कुद्स क्या है? जरा मिलकर बोलेंगे आपको बरकत मिलेगी। रूह कुद्स एक शख्स है, कहिए, और वो शख्सी खुसूसियात रखता है। आज के दौरे हाज़िरा में बहुत सारे लोग कहते हैं कि रूह कुद्स शख्सियत नहीं है, वो शख्स नहीं है, वो कोई शख्स नहीं है, वो शख्सियत नहीं है, उसकी पर्सनालिटी नहीं है। तो मैं आज बाइबल मुकद्दस के ताल्लुक से हम बातें आप तक पहुंचाऊंगा कि रूह कुद्स क्या है। वो एक शख्स है और वो खुसूसी शख्सियत रखता है। वो शख्सी खुसूसियात क्या है? रखता है। इसके मुख्तलिफ पॉइंट्स है जो मैं बारी बारी आपकी खिदमत में पेश करूंगा। अब पहला जो इसका फर्स्ट जो पॉइंट है वो कुव्वते इरादी रखता है। रूह कुद्स क्या है? वो कुव्वते इरादी रखता है। पहला कुरिन्थियों उसका 12वां बाब उसकी 11वीं आयत का जब मुतालिया करते हैं तो वहां पर यूं मरकूम है, लेकिन ये सब तफसीरें वही एक रूह करता है और जिसको जो चाहता है वो बांटता है। इसका मतलब यह है कि ये सारी तफसीरें वही एक रूह करता है। कौन सा रूह करता है? रूह कुद्स करता है और जिसको वो चाहता है वो बांटता है। यानी कि वो कुव्वत रखता है, वो इरादा रखता है और तायीन कर लेता है कि किसको मैंने कौन सी चीज देनी है और किस टाइम कौन सी चीज का कोई मुस्तहिक है। हालेलुया। अब दूसरा पॉइंट इसका है कि रूह कुद्स फहम रखता है। रूह कुद्स क्या है? फहम रखता है। नहमिया उसका दूसरा बाब, नहमिया उसका 9वां बाब उसकी 20वीं आयत और मुकद्दस पौलुस रसूल का रोमियो की कलीसिया के नाम खत उसका 8वां बाब उसकी 27वीं आयत में यूं मरकूम है, दिलों का परखने वाला जानता है कि रूह की
मुआफिक मुकस्सों की शफायत करता है, वो परखता है और जानने की सलाहियत रखता है। अब क्या है, जो रूल कुद्स है वो फहम रखता है। फहम को इंग्लिश में अंडरस्टैंडिंग कहते हैं, उर्दू में इसको सूझबूझ कहते हैं। और जो सूझबूझ रखता है वो क्या है, वो रूल कुद्स है। रोमियो 8वां बाब उसकी 27वीं आयत के मुताबिक वो क्या करता है, दिलों को परखने वाला है। अब परखने वाला यानी सूझबूझ रखता है, अकल और दनाई रखता है, उसके अंदर विजडम भी है, उसके अंदर प्रूडेंस भी है, और वो जानता है, वो क्या करता है, डिस्कवर करता है, वो जानता है कि रूह की क्या नीयत है, क्योंकि खुदा की मर्जी के मुआफिक मुकद्दसों की शफायत करता है, वो परखता है और जानने की क्या करता है, सलाहियत रखता है। वो क्या करता है, जानने की सलाहियत रखता है। अब तीसरा पॉइंट है कि रूल कुद्स क्या है, इल्म रखता है। रूल कुद्स क्या है, वो इल्म रखता है। पहला कुरिन्थियों उसका 2 बाब उसकी 10वीं आयत से लेकर 12वीं आयत का जब हम मुतालिया करते हैं तो वहां पर यूं मरकूम है, इंसानों में से कौन किसी इंसान की बातें जानता है सिवा इंसान की अपनी रूह के जो इंसान में है। इसी तरह खुदा की रूह के सिवा कोई खुदा की बातें नहीं जानता। रूह कुद्स के पास इल्म है, वो बातों को जानता है। रूह कुद्स के पास क्या है जी, इल्म है, वो बातों को जानता है। जिस तरह मैंने पहली बात कही कि रूह कुद्स क्या है, कुव्वते इरादी रखता है। रूह कुद्स क्या है, वो फहम रखता है। रूह कुद्स क्या है, वो इल्म रखता है। अब ये सारी बातें जो हैं एक शख्सियत में, एक पर्सनैलिटी में होती है। जो लोग कहते हैं कि रूह कुद्स पर्सनैलिटी नहीं रखता, वो कोई शख्सियत नहीं है, उसको छुआ नहीं जाता, उसको टच नहीं किया जा सकता, तो मैं ये कहूंगा कि जब आप रूहानी तौर पर बिल्डअप होंगे, आप स्पिरिचुअल मैच्योर होंगे, तो ये सारी चीजें फिर आपको मज़ाहिका खेज लगेगी, क्योंकि रूह कुद्स क्या है, वो शख्सियत रखता है। हालेलुया। अब जो चौथा पॉइंट है कि रूह कुद्स कुदरत वाला है। रूह कुद्स कुदरत वाला है। अमाल की किताब उसका पहला बाब उसकी 8वीं आयत का जब मुतालिया करते हैं तो वहां पर यूं लिखा है, जब रूह कुद्स तुम पर नाजिल होगा तो तुम क्या करोगे जी, कुव्वत पाओगे। रूह कुद्स ने बड़ी कुदरत से पतरस को तब्दील कर दिया। रूह कुद्स ने बड़ी कुदरत से पतरस को तब्दील कर दिया। ईद पेंतिकोस्त वाले दिन 120 लोगों की जमात में जब रूह कुद्स का नज़ुल होता है तो वो लोग जो डर चुके थे, वो लोग जो अपने खिड़की दरवाजों को, घरों को बंद करके अपने घर में बंद हो चुके थे और दुआएं कर रहे थे, तो यीशु मसीह ने कहा था कि मैं तुम्हें अकेला और यतीम ना छोड़ूंगा, बल्कि अपनी मानद एक दूसरा मददगार तुम्हारे लिए भेजूंगा। अब वो उस मददगार की तलाश में थे, लेकिन डरे वो सहमे हुए थे। जैसे ही रूह कुद्स उन पर नाज़िल होता है, पतरस के अंदर दलेरी आती है, और जब वो दलेरी के साथ अपना पहला सरना सुनाता है तो 3000 लोग खुदावंद यीशु मसीह को कबूल कर देते हैं। क्योंकि रूह कुद्स क्या है, वो अपनी कुदरत से लोगों को दलेरी बख्शता है, वो शिकस्ता दिलों को क्या करता है, मजबूत बनाता है, और वो बंद दरवाजों को खोल देता है, और नाउमीदी में उम्मीद पैदा कर देता है। हालेलुया। रूह कुद्स की ये ताकत है। अब छठा पॉइंट है कि रूह कुद्स रंजीदा होता है। रूह कुद्स रंजीदा भी होता है। इफ्सियों उसका 4 बाब उसकी 30वीं आयत का जब मुतालिया करते हैं तो वहां पर लिखा, खुदा के पाक रूह को रंजीदा ना करो। खुदा के पाक रूह को, देखिए जब आप ये कहते हैं कि मैं मसीही हूं, जब आप ये कहते हैं कि मेरा जीना मसीह और मरना नफा है, जब आप खुदावंद यीशु मसीह के तमाम अहकाम पर अमल करते हैं, देखिए खुदावंद यीशु मसीह ने हमें रूह कुद्स बख्शा है। खुदावंद यीशु मसीह ने बड़ी खूबसूरत टेक्निकल बात बता रहा हूं, खुदावंद यीशु मसीह ने हमें रूह कुद्स बख्शा है और रूह कुद्स ने हमें कुव्वत बख्शी है। हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह ने हमें रूह कुद्स बख्शा है और रूह कुद्स ने हमें कुव्वत बख्शी है, और उसकी कुव्वत से हम दुनिया पर गालिब आ सकते हैं। हालेलुया। और इब्लीस के छक्के छुड़ा सकते हैं। हालेलुया। अब क्या है कि जब हम उसके हुक्मों पर अमल नहीं करते हैं,
जब हम देखिए, जब आप रूह से भरे होंगे ना, जब आप कमरे में दुआएं कर रहे होंगे और रूह का मसा आपके ऊपर होगा, तो रूह आपसे बातें करेगा, रूह आपके अंदर समा जाएगा, रूह आपके सोचने में, समझने में, उठने में, बैठने में, चलने में, खाने में, पीने में आपके साथ साथ रहेगा। जब हमने नया बैप्टिज्म लिया तो जब मैं चलता तो ऐसा लगता था मेरे साथ कुछ चीज चल रही है। जब मैं गाड़ी में बैठा होता तो तब भी मुझे लगता था मेरे साथ मेरी सीट पे कोई बैठा हुआ है। जब भी मैं कोई बुरा काम करने लगता था तो मुझे एकदम से तंबीह होती थी, नहीं पाक रूह जीदा हो जाएगा। ये स्टार्ट में, अब भी ऐसा होता है, लेकिन स्टार्ट में जब होली स्पिरिट का तजर्बा मेरी जिंदगी को हुआ, मैंने पाक रूह का बैप्टिज्म लिया, तो मुझे जिंदगी में बड़ी बार ऐसा ना करो, ऐसा पाक रूह हो जाएगा, ऐसा रंजीदा हो जाएगा, वो ये कर देगा, वो कर दिया, यानी बुरा काम नहीं, यानी कि वो नाराज ना हो जाए। जब हमें किसी से मोहब्बत होती है तो हम उसकी मोहब्बत में गिरफ्तार होकर ऐसा कुछ भी कर देते हैं जो हम नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि हम उस शख्स से प्यार करते हैं, और वो शख्स से प्यार करने का सबूत ये होता है कि जो काम उसको पसंद नहीं होता हम वो हरगिज नहीं करते, क्योंकि अगर हम वो करेंगे तो हमारा चाहने वाला क्या है, वो नाराज हो जाएगा। अगर इसी तरह आप रूह कुद्स को अपनी मोहब्बत का इजहार करेंगे उससे, तो वो जो बुरे कामों से नफरत करता है, खुदा की आंख पाक है, वो गुनाह देख ही नहीं सकती है, तो आप भी बुरा नहीं सोचेंगे, आप भी बुरा नहीं कहेंगे, आप भी बुरा नहीं समझेंगे, क्योंकि आपको पता है कि रूह रंजीदा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रूह रंजीदा हो जाएगा। जब आप बुरे काम करते हैं तो रूह क्या है, वो रंजीदा हो जाता है, क्योंकि रूह कभी गंदी चीज पर नहीं आता है। जब आपके अंदर नापाकी होगी, गंदगी होगी, झूठ होगा, मकर होगा, फरेब होगा, तो रूह आपके अंदर नहीं आएगा। क्योंकि रूह कुछ सोचता है, वो महसूस करता है, वो इरादा करता है, वो इल्म रखता है, वो ख्वाहिश करता है, वो मोहब्बत करता है और रंजीदा होता है। इसीलिए वो एक शख्स है, इसीलिए वो एक शख्स है, क्योंकि वो रोता भी है, वो हंसता भी है, वो रंजीदा भी होता है, वो ख्वाहिश भी करता है, वो इरादा भी करता है, और वो सारी चीजें करता है जो एक शख्सियत के अंदर होती है। हमें चाहिए कि ना रूह कुद्स से कुछ कतराए और ना उस पर कभी शक करें, ना उससे नफरत करें और ना उसकी बेइज्जती करें, बल्कि हर एक वक्त ईमान और मोहब्बत और हमदोस्ताइश में आगे बढ़ते जाएं और खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा पाक रूह की इस्ताइश करते जाएं। मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा लास्ट टाइम पे, कि मसीही होते हुए हम खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा पाक रूह पर यकीन रखते हैं। कितने लोग रखते हैं? सभी रखते हैं। खुदा बाप, खुदा बेटे और खुदा पाक रूह। अब जो रूह कुद्स है वो पाक तस्लीस का तीसरा अकनून है। वो क्या है? अब क्या है? रूह कुद्स भी खुदा है, रूह कुद्स भी वो खुदा था, है और रहेगा। जिस तरह खुदा बाप का वजूद है, खुदा बेटे का वजूद है, इसी तरह रूह कुद्स का भी वजूद है। अगर हम इसके ऊपर गुफ्तगू करना चाहें तो एक बहुत बड़ी एक डॉक्ट्राइन है, इसके ऊपर एक बहुत ज़्यादा तालीमात की ज़रूरत है, लेकिन चंद लफ्ज़ों में मैंने चंद सीधा बातें आपको ईद पेंतिकोस के दिन ये मुनासिब समझा कि रूह कुद्स के बारे में बताया जाए। आगे भी खुदा ने मुनासिब समझा तो मुख्तलिफ सेशंस में या इबादत में हम रूह कुद्स के ताल्लुक से सीखेंगे कि रूह कुद्स कैसे काम करता है और हम कैसे रूह कुद्स में आगे बढ़ सकते हैं और कुव्वत पा सकते हैं। एक दफ़ा फिर आप सबको रूह कुद्स की ईद मुबारक हो। आए जोरदार तालियां।